So let us take the case of the same projectile motion. A velocity is imparted in this direction. Suppose this velocity is u, and we have learned now that the particle will be projected in this way. This is the path followed by the projectile, and this the name of this projectile ये क्या कहलाती है? इसको हमने ट्रेजेक्ट्री कहा था. ट्रेजेक्ट्री and the nature, the shape, it is parabolic in nature. ये हमने स्टडी कर लिया है कि इस प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा. अब मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है P जहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं. तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज y and this distance is equal to x. This means that particle is at point P, and let us suppose the instant of time is t. X is equal to ut and y is equal to half gt square. So using these two relations we can find out the time taken by the particle to reach this point P. Suppose we want to find out the velocity at P. Now velocity will be obtained by the tangent to this point, and this velocity is suppose v. Now what is v? V is the velocity at point P. V can be seen. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आराम से कि वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एक हो गया vx और दूसरा हो गया vy. The two components, one is along horizontal, another is along vertical. अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो क्या देखेंगे कि जो u v x है ये तो कांस्टेंट है, which is equal to u. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि there is no acceleration in the x direction, और the whole force is acting in the vertical downward direction, that is the force of gravity. तो सारा फोर्स जब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए उसका वेलोसिटी सेम रहता है. बिकॉज ax is equal to 0. हमने यही इक्वेशन यूज किया. कौन सा? x is equal to uxt plus half v is equal to u plus at. इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ 0 है तो v will be equal to u. सेकेंड कंपोनेंट vy. नाउ vy is not equal to constant. ये क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है और जब ये फॉल हो रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है इसलिए उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन? Acceleration in vertical direction is force upon m, and this is equal to plus g in our situation. Because of this acceleration, the value of velocity in vertical direction at point P will be obtained as uy plus ayt. This is the equation of motion. Substituting the value for uy initial velocity along vertical is equal to 0 plus the second value, this is g. Because it is falling down, we can take it as equal to g positive and multiplied by time. So what is the value of vy? Vy is equal to gt. Now we have to find out the total value. Velocity का resultant ये value क्या होगी? So this velocity will be obtained as by solving it factorially. This is equal to vx square plus vy square. And substituting the values of vx and vy, what do we get? Under root of vx is equal to u, so u square, and plus what is vy? Vy is equal to gt. So substituting for gt as gt whole square. The equation for velocity becomes under root of u square plus g square t square. So this is the expression for velocity at any
कैन बी टेकन एनीवेयर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ गिरते समय टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जितना टाइम ये कंज्यूम करता जाएगा टाइम को सब्स्टिट्यूट करके हम डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ये रेंज क्या है, मतलब जहाँ से हमने उसको ड्रॉप किया था वहाँ से लेके जो वो फाइनल जहाँ पर उसने स्ट्राइक किया है अर्थ के सरफेस को, वहाँ से डिस्टेंस कितना है। तो ये पॉइंट y है और सपोज ये पॉइंट उसका a है, तो ये जो y a का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल कैन बी ऑब्टेन्ड एज, range can be calculated by using this equation, x is equal to ut plus half at square. So u x component आएगा ना, a का भी x component आएगा। Now x is equal to the range r, this is equal to ux. What is ux? U is constant, so that is u multiplied by 3 and plus 1 by 2 into 0 into t square. So expression for the range comes out to be a simply product of horizontal velocity and time taken by the projectile to reach up to point A. मतलब अर्थ की सरफेस को या उस रेफरेंस सरफेस पर पहुंचने में लगने वाला टाइम, दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है? T is called as the time of flight. So, product of horizontal velocity and the time of flight will give us the expression for the range of this projectile. बॉडी को हमने ऐसे वेलोसिटी दी है u, तो जिस समय हमने इसको ऐसी वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी x दिशा में कितनी है? u. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y? इस समय इनिशियल इधर y की तरफ तो हमने किसको कोई वेलोसिटी दी ही नहीं है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या लगाया? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो जब ये vx के लिए लिखा तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, और जब y की तरफ लिखा तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। अब यह वैल्यू लगाओ x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी u है और ये क्या टर्म है? ये 0 है, तो इसलिए vx बराबर क्या आ जाएगा? हमेशा vx बराबर ux के आ जाएगा। लेकिन vy में देखो, vy क्या आएगा? uy इनिशियल, ये क्या चीज है? ये 0 है, प्लस ay 0 नहीं है, ay g है इंटू t है, तो vy की वैल्यू क्या आएगी? ये gt किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर डिपेंड कर रही है। जो y वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल है या y डायरेक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा vy भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम इन दोनों कंपोनेंट से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरी इधर आई थी, इस तरफ हमने इसका कंपोनेंट लिया, ये vx है, और इस तरफ ये लिया तो ये vy है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v बराबर क्या होगा? इट इज जस्ट अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये वेक्टोरियल इनको जोड़ दिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं राइट एंगल पर, तो इसलिए इनका रिजल्ट आ गया अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। u है तो u स्क्वायर प्लस vy क्या है? gt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? मान लो मैं ये एंगल अल्फा मान लूं, तो हम फिर इससे एंगल का टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा बराबर क्या आएगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप कंप्लीट करें तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? vx और बेस कितना है? vy। तो यहाँ से हम इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि ये वर्टिकल से मैंने निकाला है, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो हम हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल से भी निकाल सकते हैं। अगर हमने ये वाला एंगल अल्फा लिया होता
तो फिर ये क्या आ जाता, tan अल्फा इज इक्वल टू tan, ये तो ऐसे ही रहने दो, ये अल्फा 1 ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा tan अल्फा 1 इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से कोई से भी एंगल या तो वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा 1 एंगल पर और वर्टिकल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल? दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। This is a coordinate system consisting of OX and OY axes, and let us suppose a particle is projected with an initial velocity u along this direction. Now in this case, u is inclined at horizontal direction with an angle theta, or you can say angle between the initial velocity and x-axis is equal to theta. So this time a particle is projected with initial velocity u, making an angle theta with the direction of x-axis. In this situation, we will consider the same case. What is the initial velocity along x direction and what is the initial velocity along y direction? We can resolve the two. This velocity can be resolved into its rectangular components. One of those component is, one component along x direction is ux and the other component is uy which is in y direction. तो इस बार देखो क्या हो रहा है, initial velocity along x axis is ux and initial velocity along y axis is uy. So these are the two components of u. We can write this u vector as vector u is equal to sum of these two components ux and uy. Now, what about the acceleration? Acceleration along x direction. How much will be the acceleration along x direction and how much will be the acceleration along y direction? With this velocity, when the particle is projected, suppose it starts its motion and move along this line. Let us consider this as a point P, which is having a coordinates x and y. And this position is obtained at a time t. t टाइम पर क्या हुआ, पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया था वो इस पॉइंट P पर पहुंच गया, जहां उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y हैं, और इसमें जो टाइम लगाया उसने वो t है। तो अब हम वही इक्वेशंस फॉर्मुलेट करेंगे जैसे हमने प्लेन प्रोजेक्टाइल के केस में लिए थे। व्हाट आर दोज इक्वेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, Sx is equal to uxt plus half axt square. Now what is the displacement along x direction? It is x is equal to, what is initial velocity along x direction? It is u. क्योंकि ux कितना था इनिशियली, उसको u वेलोसिटी से देखा गया था, तो ux की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से देखो u का x कंपोनेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लिखें तो इस ux की वैल्यू क्या रहेगी? u cos थीटा। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ux कंपोनेंट है और इस ux कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई? इट इज u cos थीटा x डायरेक्शन में। तो यहाँ लिख देंगे u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम t प्लस 1/2। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन? अब इस पार्टिकल पे भी चाहे हमने इसको भी वेलोसिटी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, लेकिन फोर्स अभी भी किस पर लग रहा है?
force is acting in the vertically downward direction, that is the force of gravity. So no component of the force is acting along the x direction. That means we can write Fx is equal to 0. Therefore Ax is also equal to 0. क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर. अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, सिंपली वी विल गेट x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, और वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 1. प्लेन प्रोजेक्टाइल में ये वैल्यू आई थी x अपॉन u, अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ये वैल्यू हो गई टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. Now proceeding forward in the similar manner to study the motion of this projectile along y direction. So again we will write down the parameters here. uy क्या होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है u का, जिसकी वैल्यू होगी u साइन थीटा. और ay अब कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको मैं साइन माइनस दूंगी, minus of g. Acceleration due to gravity is in opposite direction, so that is minus sign will be introduced. बॉडी क्या हो रही है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को माइनस साइन से डिनोट किया है. अब व्हाट इज फोर्स, एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है ये बॉडी पर एक्ट कैसे करता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है और इवन 11th क्लास में भी पढ़ा है. एक्सेलरेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय Gm अपॉन आर स्क्वायर. ये उसका फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल जस्ट कीप इट एज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नाउ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन along vertical direction, that along y direction, so that is as phi is equal to u by t plus 1 by 2 a by t square. Substituting the values, uy is equal to u sin theta into t plus 1 by 2 into ay is minus t into t square. Now writing the values for t from equation number 1, we can substitute for t as x upon u cos theta. So writing its value u sin theta into u upon into x upon u cos theta minus of 1 by 2 gp square. Now this can be written as u is cancelled out, so sin theta upon cos theta, it is tan theta, so we can write it as tan theta multiplied by x minus 1 by 2 g by 2 into t square. And here this displacement is equal to y, so everywhere we will write it y. The final expression for the displacement of this projectile along y direction is given by y is equal to tan theta into x minus g by 2 into t square. Now from this expression we can compare it with the standard equation. A standard equation is y is equal to ax plus bx square. इस तरीके का ये इक्वेशन है. अगर इक्वेशन ऐसा है लीनियर इन y एंड क्वाड्रेटिक इन x, वही इक्वेशन आ गया ये जो हमने प्लेन प्रोजेक्टाइल के लिए पढ़ा था.
प्लेन प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ क्या था, x स्क्वायर का कंपोनेंट है, इसीलिए वो हाफ प्रोजेक्टाइल था, वो हाफ पैराबोला था। अब हमारा केस उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया, इस समय ये फुल प्रोजेक्ट पैराबोला हो जाएगा। तो जो हमारा डायग्राम है उस डायग्राम में ये कंप्लीट अगर हम करें तो प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, पहले ऐसे जाएगा ऊपर और यहाँ जाने पर इसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी, एक हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस पॉइंट पर आने के बाद फिर ये पार्टिकल नीचे आने लगेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ, और जब ये नीचे आएगा तो ये फाइनली किसी एक पॉइंट यहाँ आकर के इसको टच करेगा। लेट दिस पॉइंट बी ए। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक आने में उसको क्या हो रहा है, उसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 हो जा रही है, और जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तब ये एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरीके से डाउनवर्ड मोशन करेगा। अब हम इस इक्वेशन को देखें, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, y is proportional to x square। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोलिक पाथ। सो वी कैन कंक्लूड दैट द सेम थिंग जो प्लेन प्रोजेक्टाइल के लिए है वही इस प्रोजेक्टाइल के लिए भी हो गया। और वो क्या चीज है कि एस, ये जब प्रूव करने को आएगा तो हम लिखेंगे as y is proportional to x square, therefore ट्रैजेक्टरी कैसी है इसकी, ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। पाथ कैसा है, ये कंप्लीट पैराबोलिक है। तो चाहे कोई सा भी प्रोजेक्टाइल केस हो, प्लेन प्रोजेक्टाइल है या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, दोनों केस में ये जो पार्टिकल है वो एक पैराबोलिक पाथ पर चलता है। वी हैव टू फाइंड आउट दीज पैरामीटर्स। टाइम टेकन, टू रीच द highest point। Let us calculate the time taken to reach the highest point। इस टाइम को हम मान ले रहे हैं ये कितना है, t है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर, एज पर, तब क्या, कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, Vy is equal to Uy, V is equal to U plus AT। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे पता है वेलोसिटी कितनी है, 0 हो गई। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना था, U sin थीटा। Uy कंपोनेंट कितना था, दैट इज U sin थीटा, क्योंकि हमने ये लिया था Uy is equal to U sin थीटा, और Ux क्या लिया था, Ux is U cos थीटा। ये दो कंपोनेंट्स थे इसके। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो गई U sin थीटा और मल्टीप्लाई बाय sin थी। सॉरी, दिस इज U sin थीटा। So what is the equation? 0 is equal to initial velocity, that is U sin theta, और Ay क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ G into T। इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगा, U sin theta is equal to GT। This will imply the time। टाइम कितना आ जाएगा, U sin theta upon G। This is the time taken by the projectile to reach the highest point H। अब जिस एक्सेलरेशन जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या ऊपर जाने पर भी
और ग्रेविटेशन के डाउनवर्ड डायरेक्शन आने में भी एक्सेलरेशन सेम रहता है, दैट इज जी। तो जितना टाइम और प्रोजेक्टाइल ने इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक लगाया है, द सेम टाइम विल बी टेकन टू रीच फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द रेफरेंस पॉइंट और द लोएस्ट पॉइंट। तो ए तक जितना टाइम उसने ओ से एक्स तक लगाया है, उतना ही टाइम एक्स से ए तक लगाएगा। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू बी इन एयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। जमीन को छूने तक और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जितना समय प्रोजेक्टाइल हवा में लगाता है, उसे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। So how do you define this time of flight? It is the time taken by projectile between the instant when it is projected and the time when it touches the ground. So this time of flight t is equal to double of the time taken by the projectile to reach the highest point. So this time t is equal to 2 times of small t, that is 2u sin theta upon g. Let this be our equation number 2 and this is equation number 3. When you are asked to find out the time of flight, you can derive the equation in this way. Time of flight comes out to be as 2u sin theta upon g. यहाँ देखो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है? दो वेरिएबल्स है इसमें। एक तो है इनिशियल स्पीड, लेकिन एक बार फेंकने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। अगली चीज है एंगल थीटा। तो किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते समय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के बीच लगने वाला एंगल, ये देखो, ये एंगल है हमारा, तो ये एंगल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट इस एंगल को डिफरेंट कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम इनिशियल वेलोसिटी के लिए अलग अलग होगा। नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वर्टिकल रेंज आल्सो। ये क्या कहलाती है? यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वर्टिकल रेंज है, ठीक है। वर्टिकल रेंज, vertical range V, it is equal to, let us name it as this point is equal to D. So this vertical range is equal to OH, and this can be described as using this equation y is equal to u y t plus half a y t square। हमें ये वैल्यू मालूम है, u y कितना है? u sin थीटा। टाइम भी निकाल लिया है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो हमने लिख लिया, u sin थीटा अपॉन g प्लस 1/2 ay हो गया माइनस t और t स्क्वायर हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? u स्क्वायर, एक u यहाँ है एक यहाँ है, और साइन थीटा एंड साइन थीटा, सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस इज वर्टिकल रेंज b, माइनस ऑफ g बाई 2 इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। सो b इज इक्वल टू u square sin square theta by g minus u square sin 1g is cancelled, so u square sin square theta divided by 2g। क्या आएगी इसकी वैल्यू? v is equal to, देखो u square sin square theta by g कॉमन है दोनों में, u square sin square theta
is u square sin square theta upon 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So this is equal to 2 times of g. This is the expression for the vertical range. कितना मैक्सिमम ऊपर तक कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो हो सकता है, उसकी रेंज किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। एक तो इनिशियल स्पीड पर, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर g क्या है, कांस्टेंट है। अगला जो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस हॉरिजॉन्टल रेंज, ये मैंने ए पॉइंट बनाया था हमने, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो गई, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट कर रहे हैं आर से। तब यही इक्वेशन हमें एक्स डायरेक्शन में यूज करना है, तो यहाँ y की जगह हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल रेंज इज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, x is equal to ux t plus 1 by 2ax t square. X is near the range R, ux is u cos theta, ये कंपोनेंट है along horizontal along x direction, और t कौन सा आएगा यहाँ पर, कितना टाइम लगाया उसने O से लेके A तक आने में, that is time of flight। तो यहाँ हमें रखना है u cos theta into capital T minus 1 by plus 1 by 2 ax into capital T square। T को टाइम ऑफ फ्लाइट रख दिया है यहाँ पर। अब इक्वेशन क्या बन गया, दिस इज u cos theta मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये हमने भी कैलकुलेट की इक्वेशन नंबर 2 में, 2u sin theta अपॉन g प्लस 1 by 2 ax acceleration along direct horizontal direction is equal to 0, so 0 into t square। तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कैलकुलेट करें, u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और ये टर्म कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द रेंज, देन r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो u स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, और ये 2 sin थीटा cos थीटा, इसको हम लिखते हैं साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g। अब वर्टिकल में आपने देखा था एक्सप्रेशन क्या आया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये वर्टिकल का फॉर्मूला था। वर्टिकल रेंज कितनी आ गई थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जबकि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये साइन 2 थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं है, क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो आर के फैक्टर में, आर के इक्वेशन में क्या आ रहा है, यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल टर्म थीटा है, तो साइन 2 थीटा, इसकी कोई साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। और ये कब होती है, जब साइन का जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, बिकॉज साइन ऑफ
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो मैक्सिमम रेंज यही हो सकती है। अब मैक्सिमम रेंज के लिए देखो क्या फैक्टर है, केवल u है। इसका एप्लीकेशन हम लोग गेम्स में करते हैं। जब आप कोई जैवलिन थ्रो करते हो या आप कोई बॉल थ्रो करते हो या आप शॉट पुट डालते हो, तो आपके द्वारा दी गई स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड पर ये मैक्सिमम दूरी तक जाए, इसके लिए क्या चीज़ कंट्रोल में करनी है, वी हैव टू कंट्रोल दिस एंगल थीटा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जिस भी स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं वो उस स्पीड पर मैक्सिमम दूर तक जाए, तो हमें थीटा एडजस्ट करना है। और ये थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, कब आएगी, जब उसने लिखा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, sin 90 डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ से मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम रेंज लाने की। अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी कुछ प्रोजेक्टाइल या जो आर्टिकल हम थ्रो कर रहे हैं वो उस मेरे द्वारा फेंकी गई स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उस स्पीड के साथ साथ मैंने क्या प्रैक्टिस कर लिया कि मैं हमेशा 45 डिग्री एंगल पर ही उसको प्रोजेक्ट करूँ। जैसे हमें अंदाज पड़ जाता है ये हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से मैंने ये एंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री के करीब है, फिर ये 60 डिग्री हो गया, तो मैंने इसे 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने के बाद प्रैक्टिस की, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर स्पीड पर मैं मैक्सिमम रेंज कवर कर सकती हूँ अपने प्रोजेक्टाइल के लिए। तो प्लेयर्स को भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो इसमें मैक्सिमम रेंज है, दो चीज़ों से कंट्रोल हो रही है, एक तो यू से और दूसरा थीटा से। तो थीटा को हम आसानी से कर सकते हैं, हमें जो थ्रो देना है ना उसको हम ऐसा अपना हाथ को सेट करें, एक प्रोटेक्टर लगा करके हम कर सकते हैं, एक स्टिक लगा लो और उस स्टिक लगा करके ये कोशिश करो कि 45 डिग्री से ही आप हमेशा प्रोजेक्ट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो स्पीड, फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ कंट्रोल करनी है, वो है स्पीड। आप मैक्सिमम जितनी बढ़ा सकते हो उतनी स्पीड बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके द्वारा फेंके गया प्रोजेक्टाइल वो अपना मैक्सिमम रेंज कवर करता है। यही चीज़ हम देखते हैं व्हेन वी फ्लो वाटर फ्रॉम ए ट्यूब। अगर हम जेट से पानी बाहर फेंक रहे हैं या आप देखते हैं पौधों को पानी पिलाते हैं तो एक पाइप के थ्रू पिलाते हैं, तो अगर हम पाइप की पोजीशन को एकदम ऐसा रख दें वर्टिकल, तो पानी क्या होता है, इसी जगह नीचे आ जाता है। या हॉरिजॉन्टल रखते हैं तभी भी पानी का रेंज मैक्सिमम नहीं होता। हम धीरे धीरे पानी पाइप को थोड़ा लिफ्ट करते जाते हैं, लिफ्ट करते करते ऐसे एक पोजीशन पे ले आते हैं। जैसे ही आप 45 डिग्री करोगे तो पानी की जो करंट है वो मैक्सिमम दूरी तक जाएगी। These all are applications of the projectile motion. अब एक फाइनल टर्म और है, वो है वेलोसिटी का। Now let us consider the velocity vector which is gained at different instants during the projectile motion. You can see that these velocity vectors, they are continuously changing their direction, whereas we can resolve the component as Vx and Vy at each instant. The resultant velocity can be obtained by using the formula for vector addition. This is the resultant, that is square of one vector plus the square of another vector when the two vectors are mutually perpendicular. By using the equation for velocity, that is v is equal to u plus at, we can calculate Vx is equal to u cos theta. This a component will be 0 along x direction, and similarly we can find out the y component which is equal to u sin theta minus of acceleration will be g multiplied by t. This is second equation. Now substituting the values of Vx and Vy in the given equation, v is equal to under root of, what is Vx? Vx is u cos theta whole square plus u sin theta
minus of gt whole square. Solving this value, we can calculate the magnitude of this velocity at any instant. Don't forget that for g, we will use a negative sign with the particle projecting from O to the maximum height h, and the sign will be taken when the particle moves from h to this downward point A. We can also calculate the direction of this velocity using the formula that if the angle is made with the x component, it will be tan alpha is equal to dy upon dx. So using this formula, the direction of this velocity can be calculated by using this formula. Tan alpha is equal to dy upon dx. If the velocity makes an angle alpha with the direction of x-axis or with the x component, then the direction can be obtained by using this formula. Tan alpha is equal to dy by dx. Thus, we can find out the velocity at every instant. And the last point at which the particle hits the ground. Now you can see here the velocity component negative. Vy is in negative direction.